Hello friends, welcome to India's largest learning platform, Unacademy. Welcome, 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 welcome to friend, welcome to India's largest learning platform, Unacademy. UPSC CSE lesson to transform you from beginners to masters, B2M. Crack UPSC CSE with India's largest learning platform. Get Plus subscription and access unlimited live and recorded courses for India's best educators. What you will get? You will get daily live classes, you will get live tests and quizzes, you will get structured courses and unlimited access. Download Unacademy Learning app. Download Unacademy Learning app. About me, this is Dr. S.M. Azad. Did my MA MPhil research work in history, MU JNU Delhi, educating, mentoring UPSC CSE aspirants over 10 years. Authored books, history, political science, and social issue. I teach UPSC CSE UGC NET JRF. My Telegram channel is HTTP is given before you, and Unacademy user app, it is also reflecting before you. Prepare with 100 plus top educators: Sudarshan Gujar, Mudit Gupta, Aman Sharma, Mornal Patel, Roman Saini, Deepanshu Singh, Prakash Singh, Ayush Saini, and Ashish Malik. UPSC CSE, UPSC GS, and UPSC optional subscription plus iconic course. So 1 month it is 9,000 rupees, and again the total is 9,000 rupees. For 3 months it is 7,500 and 22,500 rupees. For 6 months it is 6,750, 40,500 rupees. For 12 months it is 4,125, and altogether it is 49,500 rupees. 24 month it is 3,000 per month, and altogether it is 72,000 rupees. For 36 months it is 2,500 per month, and overall it is 90,000. So use referral code. This is Azad, and you will get a discount of 10%. So again, the UPSC GS UPSC optional subscription plus iconic course for 1 month it is 8,100. For 3 months it is 6,750, 20,250 altogether. For 6 months it is 675 and 36,450. For 12 months it is what? 44,550. For 24 months it is what? 64,800 rupees. For 36 months it is what? 2,250 and 81,000 altogether. So use referral code Azad and get 10% discount. Again, UPSC CS UPSC optional subscription for 12 months it is 5,792. It is altogether 69,500 rupees. For 24 months it is 4,458, 1,07,000. For 36 month it is 3,917, and altogether it is 1,41,000 rupees. Use referral code Azad and get 10% discount. UPSC GS and UPSC optional subscription plus it is 12 month 5,213. Altogether it is 62,550. For 24 month it is what? 4,013. It is 96,300 rupees. 36 month it is what? 3,575 and 1,026 and 900. Use referral code Azad and get 10% discount. Azad and get 10% discount. Introductory offer. It is till 31st October. All learners subscribing to GS category till 31st October will be given complimentary subscription to optional category as well. Example, until 36th of October for GS it is 49,500 rupees.
And optional, it is total 49,500 rupees. After 31st October, you will get GS 49,500 rupees and optional 27,500 rupees. Altogether, it is 77,000 rupees. Dedicated focus on optional subjects, public administration, PSIR, psychology, sociology, geography, history, economics, anthropology, and zoology. Agriculture, mathematics, commerce and accountancy, law, management, and Nepali literature, Kannada literature, English literature, and many more. UPSC CSE optional subscription plan. Duration 1 month. It is UPSC CSE optional. It is 5,000 rupees. 1 month it is UPSC CSE GS. It is 9,000 rupees. 6 month it is 22,500 rupees. Then UPSC CSE GS 40,500 rupees. For 12 month it is 27,500 rupees. For UPSC CSE 49,500 rupees. For 24 month it is 40,000. And UPSC CSE GS it is 72,000 rupees. 36 month it is 50,000 rupees and UPSC CGS it is 90,000 rupees. To get discount of 10%, use referral code here AZAD Azad. Now a special classes subscription course, Indian art, culture and heritage. So this is the topic which is already been started in, you can say, the Unacademy learning app. So Indian art, culture and heritage. The topic today I am going to discuss to you, it is philosophy. So religion and philosophy, because the topic which I have already covered from the section of what we can say ancient history, and the ancient history specifically, it started with the ideas of what prehistoric to the proto-historic and up to the period of what history period. So in the end of the class, after the Harsha, I have discussed about that Pal, Pratihar and Rashtrakoot tripartite struggle. After that, one of the significant thing you should have to keep in your mind is what? Religion and philosophy. It has always played a quite significant role over here. So today we are going to discuss about the practices about the religion and philosophy, especially the Sankhya philosophy, the Yoga, the Vaisheshik, the Nyaya, then Mimamsa, then Vedanta and the Jaina and the Buddhist philosophy. So religion and philosophy in ancient India, the topic is what? What is the topicality part of that? It is the religion. It is what? It is religion, and it is another part is what? It is philosophy. What method of the religion and philosophy came to prominence during the time of an ancient period overall. So the real beginning of the philosophy, and you can say the part of religion, first you have to understand about that, the theme of religion, the concept of religion, what exactly is religion, and what way the procedure of active, or what we can say activating and performing according to the principle of line is what that is called philosophy. So here we would learn about the religion and philosophy, and which is still prevailing in our society and the system. अभी क्या हम लोग पढ़ेंगे? हम लोग धर्म और क्या है दर्शन, फिलोसफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्री हिस्टोरिक एज से लेकर के हिस्टोरिक पीरियड तक जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जिसका आधार या जिसका बेस क्या है? धर्म है. धर्म के साथ उसका आधार क्या नजर आता है? धर्म के साथ क्या नजर आता है? दर्शन जैसी चीजें नजर आती. So religion and philosophy is, you can say that it is you can say complementary and supplementary to each other. If you talk about religion, so without the philosophy there is no religion, and without the religion there is no philosophy. Religion contains what we can say that philosophical aspect always. So without the religion, the possibility of philosophy is not there, and the philosophical ideas which is interpreted over there, it is not possible. So religion and philosophy, especially the Sankhya system, was the propounder of this philosophy. So the religion and philosophy Sankhya system, the first one thing is that was the propounder of what we can say that philosophy, and he was known as Kapila. He was known as what? Kapila. He was the propounder of this, you can say, principle,
and his book was known as, you can say, Sankhya Sutra. The famous book is written by Kapila is known as what? Sankhya Sutra. And the Sankhya philosophy holds that reality is constituted of the two principles, you can say, one is female and another one is male. सांख्य के दर्शन में जिस चीज की चर्चा की जाती है, जिस चीज की व्याख्या की जाती है, बताया ये जाता है कि जो दर्शन का जो वैल्यू है, दर्शन का जो जो बेस है, आधार है, तो तथ्यों से ऊपर होकर के निकल रहा है। इसको इसने दो भागों में बांटा, टू जेंडर्स में बांटा। पहला जेंडर क्या है? फीमेल। दूसरा क्या है? मेल। और कहा यह जाता है कि जो प्रकृति है कि नहीं, वो क्या है? नेचर है, फीमेल है। और जो कह सकते हैं जो मेल क्या है, वो पुरुष है रिस्पेक्टिवली। और कहने का उद्देश्य क्या है कि इन्होंने प्रकृति को फीमेल से को रिलेट किया है, और प्रकृति एंड पुरुष आर कॉम्प्लीमेंटली, यू कैन से इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंड एब्सोल्यूट। और जो दोनों जेंडर है, नेचर की बात करते हैं, नेचर, और दूसरी चीज क्या नजर आती है? प्रकृति के मतलब है पौरुष। टर्म क्या है? पौरुष। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट एंटिटी। ये दोनों चीजें क्या हैं? वो बिल्कुल अलग है। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि जो सांख्य की फिलॉसफी है, सांख्य ने की फिलॉसफी को जो डिफाइन किया गया है, जो फिलोसोफर है इनके साथ में, उनका नाम क्या है? कपिला। और उनके द्वारा जो लिखी गई ग्रंथ है या पुस्तक है, उसको कहते हैं सांख्य सूत्र। इसमें जिस चीज की चर्चा की गई है, इसमें रियलिटी के बारे में, यथार्थ के बारे में जो बात बताई गई है, इसे दो भागों में बांटा गया है ना। एक जो प्रकृति है उसको फीमेल से जोड़ा गया है, और पुरुष जो है कि नहीं, मेल से जोड़ा गया। मेल और फीमेल के आधार पर इस चीज को सामने लाया गया, और बताया ये जाता है ये दोनों के दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, एंटिटी है, उसके रूप में फंक्शन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, पुरुष इज व्हाट इज दैट? पुरुष इज मियर कॉन्शियसनेस। पुरुष को किस चीज से रिलेट किया गया? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या हुआ? चेतना। Hence it cannot be modified or changed। और जो कॉन्शियसनेस है, चेतना को न मॉडिफाई किया जाता है, न चेंज किया जाता है, या कोई उसमें अमेंडमेंट जैसी चीजें नहीं की जाती। तो व्यक्तित्व है, जो जिस चीज को डिनोट किया जा रहा है, वो मेल से और पुरुष से है। कहने का मतलब क्या है? इट इज कॉन्शियसनेस, ये चेतना है। Hence it cannot be modified or changed। और यह इसको किसी भी कंडीशन में चेंज या परिवर्तन नहीं किया जा सकता। प्रकृति इज ऑन द अदर हैंड, प्रकृति नेचर क्या है? ऑन द अदर हैंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्री एट्रीब्यूट्स। और प्रकृति तीन चीजों से कहा जा सकता है कि बना है। पहली चीज क्या है? थॉट है। दूसरी चीज क्या है? मूवमेंट है। और तीसरी चीज क्या है? चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये सभी के सभी चीज क्या है? डायनामिक है, चेंजिंग है। तो कहने का मतलब क्या है? द फिलोसॉफी ऑफ सांख्य इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ व्हाट वी कैन से a rigid and what we can say a flexible system. The rigid system is identified by male and the flexible system is identified by female, and the major components of all the three changing matter is what? It is thought, विचार में परिवर्तन। Then movement, movement का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज क्या नजर आती है? चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? पूरा के पूरा बदलाव। That is one of the significant part is that the complete change part of that। थोड़ी चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, that is one of the significant part over here। तो सांख्य की फिलोसफी में जो चीजों को ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि पूरा सिस्टम दो भागों में विभाजित है, बटा हुआ है। एक नेचर से जुड़ा हुआ है, और नेचर को प्रकृति से लेके चलते हैं, फीमेल से प्रिंसिपल्स को लेके चलते हैं, और पुरुष जिसको देख के चलते हैं हम लोग कि वो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। पुरुष जो है कि नहीं, क्या देखते हैं? दैट इज वेरी रिजिड, दैट इज व्हाट? दैट इज कॉन्शियसनेस, एंड इट कांट बी चेंज एंड इट कांट बी मॉडिफाइड। बट सो फॉर प्रकृति इज कंसर्न, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी मॉडिफाइड, एंड द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी टेकन प्लेस with the ideas of changing, what we can say, transformation of these attributes bring about the change in all object। और क्या देखते हैं? इसके कारण हर एक चीज में परिवर्तन देखने को मिलता है। That is one of the significant part of there। The Sankhya philosophy tries to establish some relationship between Purush and Prakriti for explaining the creation of universe। और कहता क्या है कि सांख्य फिलॉसफी दो चीजों पर पूरी तरह से आधारित है। पहली चीज जो आधारित है, किस चीज पे आधारित है? वो नेचर के ऊपर आधारित है।
ये क्या चीज है? नेचर के ऊपर आधारित। और दूसरी चीज क्या है? नेचर के ऊपर आधारित नहीं है, बल्कि एक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। और जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, एक चेंज का और एक नॉन चेंजिंग पैटर्न का, तो क्या देखते हैं कि कैसे डायनामिक ऑफ यूनिवर्स का फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, किस प्रकार से पूरा के पूरा संसार फंक्शन करता है। So the Sankhya philosophy tries to establish some relationship between पुरुष एंड प्रकृति फॉर एक्सप्लेनिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर यूनिवर्स की बात हम करते हैं तो यूनिवर्स को क्या देखते हैं? तीन सेक्शन में बटा हुआ है, तीन सेक्शन में बटा हुआ है। एक सेक्शन जो है कि नहीं वो टेरेस्ट्रियल बॉडी है, दूसरा सेक्शन क्या है? एरियल बॉडी है, और तीसरा क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। ये ब्रह्मांड तीन भाग में बटा हुआ है, और जो तीनों भागों में बटा हुआ है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स। The things are what? One is transformation, one is always can be made transformation, and another one is what? It can be made, it is a very rigid system. There is no possibility of change at all over there. और ये क्या देते? इस दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करने की बात करते हैं। सामंजस्य का मतलब है एक दूसरे में रिलेशन, एक दूसरे में कहा जा सकता है तालमेल उत्पन्न करने की बात कही है, जिसके आधार पर क्या देखते हैं कि एक रिलेशन अगर होगा तो सिस्टम क्या होगा? चलेगा, यानी ब्रह्मांड का क्या होगा? फंक्शनिंग होगा। सो पुरुष एंड प्रकृति फॉर एक्सप्लेनिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। द सांख्य स्कूल एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एवोल्यूशन एंड आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन अराउज्ड बाय द थिंकर्स ऑन दोज डेज। और सांख्य फिलॉसफी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि संसार का एवोल्यूशन कैसे होगा, है ना, किस प्रकार से नेचर का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से नेचर में सारी चीजों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और हर प्रकार की उत्तरों का जवाब तथ्यपूर्वक इन्होंने अपने आइडियाज में, प्रिंसिपल्स में दिया है। दैट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ सांख्य फिलॉसफी, और इसे सांख्य सिस्टम भी कहा जाता है। द सांख्य फिलॉसफी होल्ड्स द रियलिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ टू प्रिंसिपल, फीमेल एंड मेल की बात करते हैं, प्राकृतिक पुरुष है, और क्या देखते हैं? वो दोनों के दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। और इस चीज की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक एस्टेब्लिश करना चाहता है दोनों के बीच में रिलेशंस की, किस प्रकार से रिलेशंस को एस्टेब्लिश किया जाए। और मेन इसके संस्थापक या कहा जा सकता है मेन इसके चलाने वाले जो थे कि नहीं, उनका नाम क्या आता है? दैट इज व्हाट वी कैन से दैट कपिला, कपिला द्वारा चलाई गई चीजें थी। और सांख्य फिलॉसफी इस आधार पर फंक्शन करती है। नेक्स्ट वन, the second significant part regarding this philosophical idea is what? It is what? Yoga, or another way we can say that yoga school के नाम से भी जानते हैं। And the literary meaning of योग का literary meaning क्या नजर आता है? The literary meaning of yoga is the union of the two principles. योग का जो आधार है, बेस क्या नजर आता है? यानी कहा जा सकता है दो सिद्धांतों पर ये आधारित, दो सिद्धांतों पर आधारित है। और द ओरिजिन ऑफ योगा इज फाउंड इन योग सूत्र, और इसका जो डेवलपमेंट होता है योग का कहाँ मिलता है? योग सूत्र में। और योग सूत्र भी क्या देखते हैं? ये पुस्तक पतंजलि द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है, पतंजलि ने ही इस पुस्तक की संरचना की थी। दैट इज कॉल्ड, यू कैन से, रोगन, एंड रिटन इन द व्हाट वी कैन से सेकंड सेंचुरी बीसी, दूसरे बीसी ईसा पूर्व में इसको संकलित किया गया है या लिखा गया है। By purifying and controlling changes in the mental mechanism, yoga systematically brings about the release of purush from the prakritik. अब सबसे खास बात क्या योगा में नजर आता है कि योगा क्या है? ये पूरी की पूरी व्यवस्था को प्यूरिफाई करता है। इट मेक्स, यू कैन से, द थिंग्स टू बी वेरी मच प्यूरिटेनिकल, प्योर उस चीज को बनाता है। एंड कंट्रोलिंग द चेंजेस इन द मेंटल मैकेनिज्म, और किस प्रकार से आदमी के मानववृत्ति, या कहा जा सकता है किस प्रकार से मानव, कहा जा सकता है कि अपने सोच में बदलाव, क्रिएशन कहा जा सकता है कि ला सकता है। एंड योगा सिस्टमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट द रिलीज ऑफ पुरुष इनटू प्रकृति। और योगा क्या है? योग एक ऐसा माध्यम है जहां पे मानव, जहां पे कहा जा सकता है मनुष्य प्रकृति के अनुसार क्या देखते हैं? प्रकृति के अनुसार एक ऐसी अवस्था में अपने आप को पहुंचाता है कि वो पूरी तरह से क्या देखते हैं कि योग का स्थिति, ये कंडीशंस क्या है? योग भी एक स्टेज है। इट इज a stage of what? Worshipping, or you can say dedicating themselves for the sake of the God, for the sake of the prayer of the goddess at all. So this is also important, you can say,
feet over there. और देखते क्या है कि योग के माध्यम से क्या देखते हैं कि जो चीज प्रकृति में है और जो चीज प्रकृति में नहीं है, उन दोनों में क्या होता है, एक सामंजस्य बैठा होता है। एक क्या देखते हैं, एक दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री चीजों को एक सामने में व्यवस्थित करता है, सामने में विकसित करता है। दैट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द योगिक टेक्निक कंट्रोल द बॉडी माइंड एंड सेंस। अब देखते क्या है, योग का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक या इसका जो सबसे आधार बात क्या नजर आता है, it controls what we can say body, also it controls mind and it also control what we can say sense. अगर इन तीनों चीजों की कमी होगी मानव में, तो मानव बैलेंस वे में फंक्शन नहीं कर सकता है। बॉडी का मतलब क्या नजर आता है यहाँ पे, कंट्रोल द बॉडी। ईच टेक्निक का मतलब है यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी फिट, and this can be maintained fit when the mental application is going to be fulfill the task whatever you plan to do it, then you can achieve it. And सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है, इंद्रियां, दैट इज व्हाट, sense organ from skin to you can say the nozzle, and ear is also the part of the skin. You can say that it is also known as sense of organ. So this is the philosophy is also considered the meaning of achievement, freedom और मुक्ति। और क्या देखते हैं, योग की भी एक ऐसी फिलोसफी का स्टेज है कि आदमी को इस स्टेज में भी मुक्ति का मतलब क्या है रीबर्थ। मुक्ति को इंटरप्रेट मैं क्लियर कट कर दूं कि whoso plan to do on this you can say the basis of the Jainism or you can say Buddhism, किसी एक फिलोसफी को लेकर कहता है कि इसको शुरू किया जाता है। लेकिन जब फिलोसफी को लेकर के शुरू किया जाता है, जब तक से उस फिलोसफी को अंत तक संपादित नहीं करते हैं, तब तक उसके रिजल्ट का अनुभव कदापि नहीं हो सकता। तो दस फिलोसफी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति। और कहा यह जाता है कि एक माध्यम है। क्या देखते हैं, योग का दर्शन ये बताता है कि मानव को संसार से मुक्ति मिल जाती है, और जो साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ का चक्का में जो पिसता है, उससे क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है। और मुक्ति इसलिए मिलती है कि बॉडी और माइंड और सेंस ऑर्गन तीनों में क्या देखते हैं, एक सामंजस्य स्थापित होता है। इट इज व्हाट इट मेक अ यू कैन से एस्टैब्लिश रिलेशन ओवर देयर। इसमें एक अच्छा सा सामंजस्य स्थापित होता है। और जब सामंजस्य स्थापित होने की बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि वो पूरी तरह से रिलीज करता है। कह सकते हैं क्या है कि द फिलोसफी ऑल्सो कंसिडर अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति। और क्या देखते हैं, सांसारिक मोह से मुक्ति हो जाए। व्हाट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट, फ्री फ्रॉम द यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यू कैन से द ग्रीड ऑफ you can say existing world। and finally क्या देखते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। but the methodology is what, very strict discipline। it is the process of, that is significant part of it। then this freedom could be obtained by practicing self control yama, observing rules niyama, and fixing the mind dharna, concentrating the chosen object you can say dhyana। then what is that, the samadhi। This is what we can say, this is one of the important and significant thing you should have to contain over here। तो यहाँ पर जिस चीजों को आप ध्यान देकर के लिख लेना, क्या करोगे आप। So what is the main mode, so what is the main idea and theme regarding what the idea of controlling body, mind and sense। it is a body, mind and sense, and it is the element and component part is what it is what the process of yoga। in this process of yoga, what we ought to do, what we do over here, this freedom could be attained practicing self control। and what is important regarding that, जो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे, इसको मेंटेन करने के लिए क्या मेंटेन करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज नियम। it is what niyam, you will have to maintain the niyam। and if for maintaining niyam, you have to fix your posture, so you have to fix your asana। the term is that you have to fix your asana। what is that, you have to fix your asana।
अपने आसन को फिक्स कर लेंगे। लेकिन बताता ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि किस रूप पे अपने आसन को आप फिक्स अप करेंगे। So that is significant part over there. So the posture, you can say, this freedom from the attain to practicing self control, और इसको कहा जा सकता है मोक्ष की प्राप्ति, और कहा जा सकता है सांसारिक मुक्ति से छुटकारा तभी मिल सकता है when you can control over yourself, जब आप अपने आप पर आत्मनियंत्रण रखें। दूसरी चीज क्या देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि whatever the things are going on, you have to minutely observe that one part of it. So it is the second thing is what? That observation. तो पहला नियम क्या है? अपने आप को कंट्रोल करना। दूसरा नियम क्या है? ऑब्जर्वेशन एट योर ओन, अपने आप को ऑब्जर्व करना। जो तीसरा कंडीशन क्या कहा जाता है? मिक्स्ड फ्रीडम। मिक्स्ड फ्रीडम कुड बी अटेन्ड बाय प्रैक्टिसिंग और सेल्फ कंट्रोल। कहा क्या जाता है कि जो दूसरी चीज क्या है कि एंड फिक्सिंग माइंड एरिना। क्या देखते हैं? दिमाग को भी, तो या माइंड को कहा जा सकता है एक एरिना में फिक्स करना पड़ेगा, जहां पर इसका आधिपत्य, जहां पर इसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा से ज्यादा होते आए। Another significant feat regarding this one is what? This freedom could be attained by practicing self-control. This can be controlled by the fixing mind, है ना? This can be controlled by choosing an object and concentration and choose the object. Object का मतलब क्या? Abject मतलब क्या है? ध्यान होना। Yoga admits the existence in good and teaches, you can say, on time. This is significant part over there, that the yoga admits the existence of God as a teacher and guide. और एक चीज को याद ध्यान में रखेंगे हम लोग, वो क्या याद रखेंगे? योगा कभी भी भगवान के एग्जिस्टेंस से अपने आप को मना नहीं करता, but if we find out the material over there, we have to select it in this way, because this is not going to be used selectively in the recent days also. So fixing the mind or dharna, concentrating on the chosen object, it is dhyan, is also important part of yoga. Yoga admits the existence of God and teacher and guide. ये सवाल पूछा जा चुका है। क्या योग विद्या में या योग कला में ईश्वर की आस्तिकता, या कह सकते हैं theistic attitude of government is prevailing or not at all? So this can be learnt over here. This can be done also with a different part of the system also. Another important thing, the complete dissolution of self, merging the minds and the objects. That is what? Complete dissolution with the bhakti of the Ishwar, or Sufism is the, you can say, Ishwar at all. So in this connection, the thing should be more and more difficult rather than the easier pace and all. Okay. Now, a number of treatises were written on this text, and the best among them is one of written by, you can say, Prashastapa, in the 6th century BC. The period was 6th century BC. 6th century AD. Prashachik school of philosophy explained the phenomena of universe by the economic theory, and commissioned for the duration of the exact period. That is important thing regarding this one. Another important part of that, a number of treaty was written on the text, but the best among them is one. What is that? Prashad Pada in the 6th century BC. Now come to another point. Then after this one, what we find after yoga, we find Nyaya. Nyaya is one of the important embodiment to the historic process of the complete history of India. It is considered as a technique of illogical thinking. अब न्याय में क्या देखा जाता है? The process of logical thinking came to prominence over here. So this is significant part over there. And another important thing, according to Nyaya, valid knowledge is defined. Valid, V-A-L-I-D. Valid knowledge is defined in another way. The system is associated as the realistic and objective philosophy of universe. Vaishashik philosophy was written by Kannad.
what is important over here? The important part over here is that it is what? Vaisheshik thinkers believe that all objects of the universe are composed of 5 elements. तो संसार में सारी चीजें जो बनी हुई है 5 तत्वों से बनी हुई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आता है अर्थ, धरती। दूसरी चीज क्या नजर आती है? पानी। तीसरी चीज क्या नजर आती है? इट इज वायु। तो इट इज कॉर्पोरेटेड बाय ऑल द थ्री सब एलिमेंट्स ओवर देयर। देन द रियलिटी अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी हैज मेनी बेसिस। क्या देखते हैं? मेनी बेसिस। एंड इट इज बिलीव दैट द यूनिवर्स इज व्हाट? 5 एलिमेंट क्या है? अर्थ है, वाटर है, एयर है और ईथर है। ये 5 चीजें मिलकर करके क्या देखते हैं? पूरा के पूरा यूनिवर्स का निर्माण है। और अगर सवाल पूछा जाए वैशेषिक स्कूल का बेस, तो आप बता दीजिएगा कि ये 5 तत्व, इसमें अर्थ है, वाटर है, एयर है, फायर है, ईथर है, ये सारी चीजों का मिला करके, या कहा जा सकता है सम्मिलित रूप से डिजाइन कर करके उसको उस कैटेगरी में रखा गया। Another important thing is that the living beings were rewarded or punished according to the law of कर्मा। इस चीज की पुष्टि की जाती है, क्योंकि जो बेस की शुरुआत कर रहे हैं वो हम लोग क्रिएचर की बात करते हैं, है ना। उस चीज की बात किया है हम लोगों ने उस व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में। तो इसमें क्या देखते हैं? वैशेषिक स्कूल की जो बात नजर करके आती है वो क्या नजर आती है? क्या नजर आती है? नजर आती है दे बिलीव दैट द गॉड इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। गॉड क्या है? एक गाइडिंग प्रिंसिपल। ये कभी भी गॉड के डिनाइल को हम नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट करते। कहता क्या है? गॉड इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल। द लिविंग बीइंग्स वर रिवार्डेड और पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कर्मा। और जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी लिविंग बीइंग है ना, उसको हताहत या नुकसान अगर पहुंचाया जा सकता है या फिर मारा जा सकता है, तो only 2 are responsible over there. The first one is what? The first one is what? According to the law of karma. And the second thing is what? The action, merit and demerit. So the creation and destruction of the universe was a cyclical process and took place in agreement with the wishes to go. अब क्या कहते हैं कि ये जो यूनिवर्स है, पूरा के पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था पर टिका है, एक व्यवस्था पर आधारित है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई पक्षपात जैसी चीजें या तथ्य नजर नहीं आती। इट इज बेस्ड ऑन एक्शन ऑफ मेरिट, एक्शन ऑफ डिमेरिट एंड क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स वाज द साइक्लिक प्रोसेस। इट शुड बी अंडरस्टूड पार्ट ऑफ दैट। सो दिस व्हाट वी लर्न फ्रॉम हियर। Any sculpture, any statue or any images which is with you since longer period. So first suggestion is that should make clean at all. So what is that? That should make clean at all. So that way the merit and demerit can be assessed over there. Next one out. Yoga. I have discussed about the things regarding the yoga. And after the yoga, the important thing is what? Nyaya and Vaisheshik. अभी वैशेषिक को मैंने डिस्कस किया, लेकिन उसके पहले न्याय जान जाते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज ए टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। व्हाट इज न्याय? न्याय इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। अगर यूपीएससी सवाल करता है तो आप इसको जवाब देना कि न्याय व्यवस्था क्या था? एक लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस। एंड अकॉर्डिंग टू द न्याय वैलिड नॉलेज इज डिफाइंड एज द रियल नॉलेज। और सबसे रियल नॉलेज का मतलब क्या है? वो तथ्य जो है कि नहीं, उसकी वैलिडिटी हो, उसकी सत्यापितता हो सकता है, तभी वो वैलिड नॉलेज है। दैट इज वन यू कैन से नोज अबाउट द ऑब्जेक्ट टू एज इट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज व्हेन वन नो ए स्नेक और ए कप ऑफ, यू कैन से दैट टी और ए कप। तो न्याय सिस्टम ऑफ द फिलोसफी कंसीडर्ड गॉड हु क्रिएट्स, सस्टेन एंड डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स। गौतम इज सेड टू बी द ऑथर ऑफ न्याय सूत्र। और माना यह जाता है कि न्याय सूत्र का सबसे पहली बार प्रयोग या परीक्षण किसने किया है? तो खास करके गौतम ने किया। Another significant thing regarding this one, it can also do amendment part of that. What is that? It is when one knows the snake or a you can say cup or a cup of what we can न्याय system. So philosophy considered God who creates, sustain and destroy the universe. Gautam is said to be the author of Nyaya Sutra.
कहा यह जाता है न्याय की व्यवस्था में कि हर एक इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन, you have to be accountable with that. How you can be accountable with that? When in the area of stealing, when in the area of billing, any kind of suggestions are there, it is all the time welcome from that side also, and that can also help it out for developing the correlations between them. So that is important part of न्याय. यार न्याय की जो सबसे बड़ी बात नजर आती है वो क्या नजर आती है? क्या नजर आती है कि ये खुद से ही, पूरा संसार खुद से ही बनता है, खुद से ही डिस्ट्रॉय होता है, एक नेचुरल सिस्टम पर ये पूरी तरह से आधारित है. तो दैट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर देयर. सस्टेन एंड डिस्ट्रॉय. गौतम इज सेड टू बी द ऑथर ऑफ न्याय. न्याय का जो ऑथर पता चलता है, इस पुस्तक को लिखने वाला कौन है? गौतम है. अब इसकी विशेषता देखिए हम लोग, इसका वैशेषिक की. The system is considered as the realist and objective philosophy of universe. वैशेषिक फिलोसॉफी वॉज रिटन बाय कन्नड, KANAD, कन्नड. इस बेसिक चीज है, छोटी सी चीज है, उसको याद जरूर रखेंगे. तो इसको लिखता कौन है? कन्नड को. इट वॉज रिटन बाय कन्नड. द रियलिटी अकॉर्डिंग टू द फिलोसॉफी हैज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? द रियलिटी according to this philosophy has many bases or categories which are substance, attribute, action, genius, distinct quality and adherence. Vaisheshik thinkers believe that all objects of the universe are composed of 5 elements, as I told you. Earth hai, water hai, air hai and free ether hai. So what is significant part about that? That you have to maintain whatever the direction has been given by the according to Vaisheshik philosophy. So it is what inner conscience of a mankind over here. That is the reason why the separate of different kind of diseases and other things has been corroborated over here. इस चीज की यहाँ चर्चा की गई है. नेक्स्ट वन आइए मीमांसा. तो यहाँ पे मीमांसा जाने से पहले जानेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मीमांसा. मीमांसा का मतलब क्या है? This philosophy is basically analysis of interpretation, application and use of the text of Samhita and Brahmanas portion of the Veda. इसकी विशेषता क्या नजर आती है कि जो चीज अंकित है किसमें? संहिता में. जो चीज अंकित है किसमें? ब्राह्मणास में. एंड जो चीज और भी अंकित हुई होगी दूसरे कंडीशंस को ला करके देखेंगे या बताएंगे. So this philosophy is basically the analysis and interpretation and application and the use of the text of Samhita. क्या देखते हैं? संहिता और ब्राह्मणास में जो चीजें लिखी गई हैं, वेद की चीजें उसमें लिखी गई है, इन सारी चीजों के ऊपर में एक इंटरप्रिटेशन या कहा जा सकता है एक ग्लॉसरी देने के बाद उसमें मेजर पार्ट ऑफ कहा जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन अंकित होता है. So that is important part over there. The text of Samhita or the Brahmanas are of two. तो कहने का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट है ब्राह्मणास की, या जो टेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, ये खास करके संस्कृत में है. कौन सी चीजें नजर आती है? मीमांसा की बात करते हैं, ब्राह्मणास की बात करते हैं. अकॉर्डिंग टू मीमांसा, फिलोसॉफी ऑफ वेदा आर इटर्नल एंड पोजेस ऑल नॉलेज. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की घोषणा ये की जाती है अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसॉफी. वो क्या बताता है कि वेद में जो चीजें लिखी गई हैं इटर्नल है और पोसेसेस ऑल नॉलेज. इटर्नल का मतलब क्या है? वेद का कोई रचयिता नहीं है. हु इज स्ट्रक्चर्ड, हु हैज बीन डिजाइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेदा, ऋग्वेदा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट दैट. तो यहाँ पे फिलोसॉफी कहती क्या है, मीमांसा कहती क्या है? ये पूरी की पूरी चीज एक परिवर्तनीय है और एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट. So according to Mimamsa philosophy, Veda are what we can say that according to this philosophy, what is Veda are eternal and possess all knowledge. अब क्या देखते हैं? इटर्नल का मतलब क्या है? जिस विषय वस्तु की जानकारी आपको नहीं मिल पाती है उन्हें मेडिटेशन के माध्यम से मिल जाती है. Another significant part is that another thing is black. What we can say that another thing is what? The practices of what we can say two people here is what? Veda are eternal and possible
पॉसिबली एसेस ऑल नॉलेज। ये दो चीज को याद कर लो कि वेद क्या है, इटर्नल है और करीब करीब मानव के हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति हर सराउंडिंग के साथ में कर देता है। सेकेंड थिंग इज दैट according to Mimamsa theory, philosophy of Veda are eternal and possess all knowledge, and religion means fulfillment or duty of prescribed by the Veda. अब कहते क्या है, फिलोसफी के बारे में जो चीज कही गई है किसमें, वेदा, कि भाई ये फिलोसोफर किसको कहेंगे, who has attained the facility of organizing what we can say the activities which is prevailing over here. It is what we find over here that in this condition the compassion is also one of the important part of it. So the navy, what is the Nyaya Vaisheshik system and emphasizes the concept of valid knowledge. It means text is known as the Sutra Kamini, which have been Durg, what we can say, which have been called, it is Durg, and it can be maintained over by 7, you can say, Desi. Another important thing in this connection, the names associated with the philosophy are Sankhya, Swami and Kurnal Bhatti. इसके ऑथर है, साल स्वामी के ऑथर कौन है, Kurnal Bhatti. Another important thing which has been written during the 3rd century BC, the numerous associated, the names were associated with the philosophy are, you can say, Tabar, Swami and Kumaral Bhatta. These essence of the system according to Jamimi भी बहुत बड़े poet philosopher हुए, Jamimi it which he recognized as the sole, you can say, authority or temperament of the system at all. Next one is what? Righteousness. This system lays a stress on the ritualistic way of Veda. Next one, it is what? Next one you should have to keep in your mind is what? Mimamsa. This philosophy is basically the analysis, interpretation, application and the use of the text and Samhita and Brahma portion of the Veda. What is important regarding that? How would be the situation can be augmented with the help and ideas of basic culture. That may be take time also of designing this also important part of it. It is also part of it. The essence of the system, according to Jamimi, is dharma, which is dispenser of fruits and one transaction to the law of your righteousness. So this level is very much, you can say, increased part of that. Now Nyaya, philosophy of Nyaya. Now come to the point of Vedanta. It implies the philosophy of Upanishad. जब वेदांत philosophy की बात करेंगे, the base is what? The base is Upanishad. The base is what? Upanishad. The base is what? Upanishad. Another condition is that Shankaracharya wrote the commentaries on the Nalanda, on the Upanishad, Brahmans and Bhagavad Gita. So this is what we can say sacrosanct and the religious place also. It is very much keen to understand about this part of the system. It is what? Vedanta philosophy. Vedanta philosophy has ventured to deny the existence of God. अब याद रखना, वेदांत की फिलोसफी में गॉड के एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से नकारा गया है. And why it is like this, that philosophy and philosophical idea is not up to the mark at all. The answer should be, as a philosophy, it indicates the system which is going to bifurcate over there. So here what is important, that note it down, implies the philosophy. इसमें क्या कहेंगे कि दर्शन भी है और दर्शन में उपनिषद विषय वस्तु के बारे में भी वर्णन किया गया है. और क्या देखते हैं, वेदा शंकराचार्य रोड द कमेंट्रीज ऑन द उपनिषद. सबसे पहली बार क्या देखते हैं, शंकराचार्य ने वेद की कमेंट्री के ऊपर में लेख लिखा है या डिस्क्रिप्शन किया है ऑन द उपनिषद. और क्या देखते हैं, दूसरी तरफ उपनिषद के ऊपर में भी, दिस इज
one of the significant thing that is noticeable over here. And one more thing that is related to Vedanta philosophy has ventured the denial to existence of apparent God, as known to us, and in this respect, Vedanta had its own unique position in the history of philosophy of the world. Vedanta is the philosophy and religion. As a philosophy, it inculcates the higher truth that have been discovered by the greatest philosopher and the most advanced thinkers of all ages of the country. कहते क्या है? जो वेदांत की फिलोसफी है, ये वेदांत की फिलोसफी पूरी तरह से क्या कहा जा सकता है? प्रैक्टिकल, बेसिक जो है कि नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर में आधारित है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? इस फिलॉसफी को क्या कहा जा सकता है? ये पूरी तरह से हाईएस्ट लेवल ऑफ सत्यता के ऊपर सत्यापित की गई है। एंड इसमें देखा ये गया है कि जो ज्यादातर थिंकर जो लोग रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सत्य चीजों को या फैक्ट चीजों को ट्रूथफुली कॉर्पोरेट करते हैं या कोलैबोरेट करते हैं। तो एक फंडामेंटल चीज आप जान गए, वेदांत की फिलोसफी किसे कहेंगे? एक ऐसा फिलोसफी, एक ऐसा दर्शन जो पूरी तरह से सत्यता पर आधारित है, या सत्यता के ऊपर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बेस है, आधारित है। दूसरी खास बात क्या नजर आती है? इट इज अ फिलोसफी दैट मेक्स अ हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रूथ। हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रूथ की तो बात की गई है जो मैंने डिस्कस। Another significant thing what we find notice over here, Vedanta philosophy teaches that all these different religions are like so many roads. कहने का उद्देश्य क्या है कि हर एक रिलीजन का ओरिजिन एक जगह से हो रहा है, लेकिन उसके जाने के रास्ते भिन्न भिन्न ढंग से हैं, भिन्न भिन्न तरीके से हैं, which led to the same goal। और अंतर सबका गोल क्या कहा है? एक है। वेदांत फिलोसफी क्या कहता है? हर एक आदमी का गोल एक ही है, यानी कहने का मतलब है कि या तो स्वर्गलोक में जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो, या उसकी स्थिति अच्छी, यथा स्थिति अच्छी बनी रहे। तो एवरीवन think it out on this line, but the Vedanta philosophy, it indicates the clarity about this one. Another significant thing, then Vedanta philosophy teaches that all these different religions are like so many roads. Is what Vedanta, to end the Vedas knowledge, refers to Upanishad, which appears to end the Veda with the direct. The core message of Vedanta is that every action must be governed by the intellect. वेदांत फिलोसफी कहता क्या है? यहाँ ये जानना आप लोगों को जरूरी है। क्या कहता है? द कोर ऑफ, जो मुख्य तत्व है किस चीज का? वेदांत फिलोसफी। द कोर ऑफ वेदांता फिलोसफी इज व्हाट? दैट इज एवरी एक्शन मस्ट बी गवर्न्ड बाय इंटेलेक्ट। कोई भी आदमी, मनुष्य द्वारा किया गया कार्य, मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी एक्शन किसी भी कंडीशन में बिना एक्शन के नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोई भी कार्य को संपादित किया जाता है तो उसमें परिपक्वता चाहिए, उसमें इंटेलेक्चुअल टैक्ट चाहिए। एंड व्हाट वी कैन से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये क्या देखते हैं कि द डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी, और इसके आधार पे क्या देखते हैं कि किसी भी चीज में अगर सत्यता की जानकारी नहीं है या कमी है तो वो चीज नहीं हो पाता है। तो द माइंड मेक्स मिस्टेक बट द इंटेलेक्ट टेल्स ओन एक्शन इंटरेस्ट आर नॉट। सबसे बड़ी बात क्या नजर आता है? माइंड मेक्स मिस्टेक, दिमाग से गलतियां हो सकती है, लेकिन क्या देखते हैं? अगर आप में इंटेलेक्चुअल है, आप में अगर इंटेलिजेंसी है, तो आप उस चीज को गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो इंटरेस्ट भी है। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि वेदांता की जो फिलॉसफी है उस तथ्य को पुष्टि को संपादित करती है कि किसी भी कंडीशंस में कोई भी चीज अन्यायपूर्ण जैसी चीजें नहीं होंगी। Whether one move into spirituality through yoga, meditation or devotion, it must ultimately crystallize into the inner understanding of, you can say, attitudinal changes and enlightenment। कहने का उद्देश्य क्या है? वेदांत की जो फिलॉसफी है ये बताता क्या है? स्पिरिचुअलिटी जो भी चीज है, योगा के माध्यम से हो, आदमी मेडिटेशन करता है, आदमी क्या करता है? मेडिटेशन, ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है। It must ultimately crystallize into the understanding for attitude and changes enlightenment। और क्या देखते हैं? इस माध्यम से जब आदमी योग करता है, योग करने के बाद क्या देखते हैं? ध्यान करता है, मनन करता है, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? उसका प्रभाव ये पड़ता है कि आदमी की अंडरस्टैंडिंग, आदमी की सूझ बढ़ती है और उसमें एक एटीट्यूडनल
उसके कैरेक्टर में एक कहा जा सकता है बहुत ही पावरफुल चेंज होता है। और जब चेंज होता है तो क्या देखते हैं, वो स्टेज किस चीज का हो जाता है, एनलाइटनमेंट, और वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अनदर सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर हियर इज व्हाट, द फिलोसॉफी ऑफ जैन फिलोसॉफी। जैन फिलोसॉफी में जिस चीज की चर्चा की गई है वो क्या देखी गई है, लाइक द चार्वाकास, द जैन टू डू नॉट बिलीव इन वेदा। क्या देखते हैं, जैन फिलोसॉफी हो या बुद्ध की फिलोसॉफी हो, ये वेद की बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन उपनिषद के कुछ बनाई हुई चीजों को देखते हैं, और जिसके कारण उपनिषद के रिएक्शन से ही कह सकते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म का डेवलपमेंट। बट दे एडमिट द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, और ये गॉड के एग्जिस्टेंस को बिलीव नहीं करते हैं, कहते हैं कि जी ईश्वर नाम की चीज नहीं है, लेकिन ये आत्मा को, सोल को जरूर रिकॉग्नाइज करते हैं। और कहते क्या है कि एवरीवेयर देयर इज सोल, हर एक कण में आत्मा जैसी चीज। दे ऑल्सो एग्री विद द ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन ऑफ द सफरिंग ऑफ पेन एंड इट कैन बी स्टॉप्ड बाय कंट्रोलिंग द माइंड एंड सीकिंग इट नॉलेज। और क्या देखते हैं कि जो ह्यूमन का जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो क्या है, कंट्रोल मैकेनिज्म, नर्व के ऊपर कंट्रोल करना। मतलब क्या है, अपनी सोच को, अपने सोच के आधार को क्या देखते हैं कि उस आधार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, अपने में कैसे संयम रखा जा सकता है। तो वो मेथड क्या है, रेन्यूसिएशन ऑफ सेल्फ डिजायर। जब आदमी अपने ग्रीड को, अपने स्वार्थ को त्यागता है, तब वो चीजें आपके पास आती। जैसे फिलॉसफी में क्या कहा गया है नॉन लाइंग नॉन पोजेशन, कहा गया है नॉन लाइंग नॉन पोजेशन जैसी बातें कही गई, नॉन स्टीलिंग जैसी बात कही गई है, राइट एक्शन की बात कही गई। ये चीज क्या है, तो दिस इज द स्टेज ऑफ ब्रह्मचर्य, जिसके आधार पर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एंड दैट इज व्हाट वी कैन से दैट कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम। द नेम्स ऑफ अजीतनाथ, यू कैन से अरिस्टानेमी, और इनका जो प्रमाण मिलता है, क्या मिलता है, आदिनाथ हो, अजीतनाथ कह रहे हैं, इनका प्रमाण कहाँ, वेद में ही मिलता है। और ऋषभदेव जो है कि नहीं, पहले के पहले, सबसे पहले तीर्थंकर का नाम आता है। उन लोगों ने इस तथ्य को जाना, समझा। आगे चल के क्या देखते हैं, महावीर के काल में वो चीज सामने में आ जाती है। तो देयर वर 24 तीर्थंकर्स हु एक्चुअली एस्टैब्लिश द जैन दर्शन, जिन्होंने जैन दर्शन की स्थापना की। द फर्स्ट थिंकर रियलाइज द सोर्स ऑफ जैन फिलोसॉफी वाज आदिनाथ। आदिनाथ ने सबसे पहले इस दर्शन को अनुभव किया और फिर बताया। एंड व्हाट इज दैट, महावीर वाज बोर्न, और देखते क्या है कि उनका जन्म 599 BC, ही लिव्ड वर्ल्डली प्रॉपर्टी एट द वेरी टेंडर एज ऑफ 30। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, और अल्टीमेटली क्या देखते हैं कि उन्हें ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है, या सेलिबेसी कहा जा सकता है, या कैवल, और कहा जा सकता है कि अरिहंत, इस शब्दों का प्रयोग किया गया है या नाम लिया गया है। The second, another major school is what it is called चारवाक स्कूल, या चारवाक स्कूल के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रोफाउंडर, यानी इस स्कूल की विचारधारा की नींव डालने वाले का नाम क्या नजर आता है, हम लोग वेदा में क्या देखते हैं, बृहदर्न नायक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है ना। बृहस्पति इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ द चारवाक स्कूल। चारवाक स्कूल के फाउंडर कौन थे, बृहस्पति थे, उन्होंने फाउंडेशन का नींव डाली थी। Another important thing, it finds mention in the Veda and बृहदारण्यक उपनिषद। इसका वर्णन कहाँ में देखने को मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में देखने को मिलता है, वेद में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। It is supposed to be the earliest in the growth of philosophical knowledge, और माना ये जाता है कि सबसे प्रथम बार अगर कोई दर्शन सामने, या कहा जा सकता है दर्शन स्कूल सामने आता है, तो वो चारवाक की फिलॉसफी नजर आती है, जिसका की बेस और ओरिजिन हम लोग कहाँ देखते हैं, जैन धर्म में देखते हैं, चारवाक की फिलॉसफी। इट होल्ड्स नॉलेज इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट विच लीव्स नो ट्रेस आफ्टर डेथ। क्यों कहा जाता है कि इस फिलॉसफी का जो मेन कॉम्बिनेशन है, आधार है, उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, और वो डेथ होने के बाद ही कुछ समझ में आता है कि वो चीज गया तो कहाँ गया, अटेन कैसे किया गया। चारवाक फिलॉसफी डील्स विद मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी। इसकी सबसे बड़ी बात क्या है
भौतिकवादिता, मटीरियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? गेन। अगर किसी चीज से आपको गेन है तो आप उस काम को करोगे, इसको क्या कहते हैं? भौतिकवादिता। तो भौतिकवादिता से इसका संबंध है किसका? चार्वाक की फिलोसॉफी से। अगर जिस चीज से आपको लाभ होगा आप उसी के विषय में सोचेंगे, उसी के विषय में करेंगे, या उसी के प्रति आपको इंटरेस्ट होगा। सो दिस फिलोसॉफी इज ए स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ऑफ व्हाट? द फिलोसॉफी ऑफ मटेरियल पार्ट ऑफ इट। इट ऑल्सो नोन एज लोकायत फिलोसॉफी। इसको लोकायत फिलोसॉफी भी कहते हैं। लोकायत का मतलब क्या है? लोकायत का मतलब बहुसंख्यक, लोकायत का मतलब काफी लोग, लोकायतिज्म के नाम से भी मशहूर हुआ, और बहुत लोगों ने इस फिलोसॉफी को एक्सेप्ट भी किया, खास करके 6th सेंचुरी बीसी। दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ द मासेस, और इस फिलोसॉफी को क्या कहते हैं? दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ द मास, यानी पूरी की पूरी मास उस फिलोसॉफी को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, अभी क्या है भारत में? प्रजातंत्र है, तो क्या है? दिस इज द फिलोसॉफी ऑफ द मास। मास इस फिलोसॉफी को अडॉप्ट करता है, मानता है। एवं परिवार में भी अगर कोई डिसीजन मेकिंग थिंग है तो पारिवारिक डिसीजन होता है, वो डेमोक्रेटिक डिसीजन होते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट वी कैन से दैट इट इज व्हाट इट इज, यू कैन से फिलोसॉफी ऑफ द मास। अकॉर्डिंग टू द चार्वतास देयर इज नो अदर वर्ल्ड, हेंस डेथ इज द एंड ऑफ ह्यूमंस एंड प्लेजर टू अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ। चारवाह चूंकि बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल होने के बाद ये क्लियर कट कह देता है कि मरने के बाद तुम स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में जब तक जीवित हो तब तक अच्छा करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ये दुनिया में ही स्वर्ग और नरक दोनों विद्यमान। तो ही इज सो मच, दिस फिलोसॉफी इज व्हाट? इट इज सो मच, you can say, pragmatic at all, and he expresses about that कि जितना भी दुख और सुख पाना है, करना है, वो आपके कर्म से होगा, और उसको अवेल कर लो। ये कभी भी मत प्लान करो कि मरने के पश्चात ये होगा या ये नहीं होगा, आपका स्टेज होगा या इस। तो he is very much pragmatic in his approach and idea, and that is why it was also known as Lokayat, and the philosophy of the common man, that is also known with that. Charvakas recognizes no existence of other than material world. Means God, soul and heaven cannot be perceived. They are not recognized by Charvakas. साफ कहता है हमें नहीं पता कि भगवान क्या, हमें नहीं पता कि आत्मा क्या, हमें नहीं पता है कि स्वर्ग क्या, हमें नहीं पता है कि कहाँ पे कैसे क्या होता। मैं बस एक ही चीज जानता हूँ, जो 5 पंच तत्व है उसमें क्या है? अर्थ है, उसमें क्या है? वाटर है, उसमें क्या है? फायर है, उसमें क्या है? एयर है, उसमें क्या है? इथर है, अलग चीज। इन 5 चीजों के निर्माण से ही संसार का निर्माण हुआ है, और ये सारी की सारी चीजें आपको उपलब्ध आसानी से हैं। इट इज ऑलवेज राइफ, इट इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू, यू कैन अवेल इट ऑल्सो। तो बी प्रैक्टिकल and don't do any speculation that what you are getting after the death of yours. No one can say about that. Is anyone have interpreted about that? I was been to God, I was been to Swarg, I was been to Nark, and these are the bad condition over there, and these are the good condition over there. नहीं, कोई भी स्वर्ग में नहीं गया है, ना कोई नर्क में गया, ना कोई स्वर्ग से वापस आया है, ना नर्क से वापस आया है, और बताया है कि स्वर्ग की स्थिति ये है, नर्क की स्थिति क्या है। Everything is based on speculation. That is the reason why the Charvak philosophy is based on the idea of pragmatism. The Charvak do not recognize there as the known to the person. The whole universe, according to him, is the consistent of 4 elements. ये पूरा की पूरा जो संसार है, ये 4 तत्वों से मिलकर के बना है। इसके ऊपर क्या देखते हैं? डेथ है, बर्थ है, जीवन है, मरण है, स्थिति विवाद है, ये सारी चीजें, सारा सिस्टम है। एंड ऑल दिस सिस्टम्स आर व्हाट? इट इज मैन मेड। ओके, so this is all about the scenario regarding the things मैंने डिस्कस किया आपसे। ये सारी चीजें हैं और इसका अध्ययन आप करेंगे। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन समाप्त होता है। इस सेक्शन में मैंने आपको कल्चरल सेक्शन को भी डील किया है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं वो जो है कि नहीं, वो जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे है, वो लाइव क्लासेस हो रहे हैं, किसके? कल्चर हेरिटेज का सेक्शन है। तो जो लोग चाहें उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फॉर दैट इट इज थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और याद रहे कि मैं कल से फिर आ रहा हूं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर के, जो कि टॉपिक होगा आपके मेंस का
2020 का भी होगा, 2020-21 होगा, और फोकस इसका होगा फाउंडेशन कोर्स मेंस का मॉडर्न इंडियन होगा। ओके फाइन, थैंक यू।